smoking form, gutka, kheni, pan masala. And this is our problem. We have colleagues and friends and governments around the world that are concerned with smoking forms. So there is international support, there are global NGOs working against the use of cigarettes. But the fight against smokeless forms will have to be led by India, because it is not an issue that even exists in several other countries. There is a usage of snuff in some parts of Scandinavia and in Europe. But basically, this is India or possibly South Asia's problem. And whatever is done, the lead will have to be given by us, because nobody else is going to do it. So from that point of view also, it's extremely important that this kind of activity is taking place, because this is the kind of leadership that the fight against smokeless forms of tobacco needs. The other thing I would like to say is that, and I'm grateful to Dr. Pankaj Chaturvedi for also mentioning this point, that a lot of legislation will only work if people allow it to work. India has a very, very strong record on social legislation, not just in the area of tobacco control, but in other areas. But our implementation record is very poor. I can just mention just one example and you will understand what I am saying. We have very strong and good legislation that bans the use of ultrasound technology for sex determination during pregnancy. And we all know from where we are placed that the misuse of ultrasound technology for sex determination, the rampant abuse of the PNDT Act is happening every day in every city, town, village in India. So the legislation exists, but the existence of the legislation in itself is not enough unless a few courageous people like you stand up and say that we have the strength of the legislation, now we have to fight with this. Because it is, just as I've always said on the question of female feticide, that people must stand up, women and men alike must stand up and say that we will never permit this to happen in our families, and the law is with us. And anybody who compels us to do anything different, we will invoke the law against. So something similar applies in the case of anti-tobacco legislation as well. At the end of the day, the only way in which this can stop is that if people stop buying cigarettes or if people stop buying pan masala. Nothing is going, all people are fiercely independent-minded in all these things. But we are never going to beat the menace. We are never going to say that we have put this problem behind us unless huge numbers of people, huge numbers of us, huge numbers of citizens say that this is going to stop. We are not going to do it. I know big business, there is huge, there is a mega billion tobacco industry that exists in this country as elsewhere in the world. But the only reason they continue in business is because we are giving them business. So I would really urge that each and every one of us, in whatever our capacity is, however limited our circle is,
that we should spread the message that tobacco kills. You don't need to be a leader of any sort. You don't need to be a mass meeting person. You don't need to be a public speaker. You don't need to be a film star or a TV personality. You are just who you are, but every one of us has a circle of friends and acquaintances. And we must not be, thing is, you see somebody smoking a cigarette, to be honest with you, I have never had the courage to go to that person and say, stub it out. I have done, maybe I have done it with a friend. But a friend of mine took a cigarette and said, pull it out. यानी एक्सेप्टेंस मिल गई किस बात को, एक्सेप्टेंस हमें मिली है इस बात को कि फीमेल्स के अंदर भी च्यूइंग टोबैको को भारी एक्सेप्टेंस मिल रही है। नेक्स्ट, अब आइए देखें कुछ कैंसर के आंकड़ों पर। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यदि स्मोकिंग करेंगे तो कौन से अंग का कैंसर होगा? लंग्स का, ठीक है। और हम च्यूइंग करेंगे तो कैंसर कहां का होगा? मुंह और गले का, ठीक है। अब यदि हम देखें तो लंग कैंसर जो है वो करीब 8% है, जबकि 60% पॉपुलेशन स्मोकिंग करती थी, जबकि सिर्फ 40% दिया कि लोग बस ही खींचे चलेंगे उसका सेवन करने को। बहुत अच्छा है, देशी राजनीति जी ने कहा कि हमें अपने आप के ऊपर आत्म कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन यदि सामने लालायित करने के लिए एक चीज पड़ी हुई है और आपको जबरदस्ती खिलाई जा रही है, तो कैसे हम अपने आप को रोक पाएंगे? अब निकोटीन, परफ्यूम, देखिए दो चीज होती है, एक तो फ्लेवर होता है और एक परफ्यूम। परफ्यूम इज कॉन्ट्राबैंड, इट शुड नॉट, इट कांट बी एडेड इनसाइड इट एनी एडिबल आइटम, पर फ्लेवर नहीं, परफ्यूम ऐड करते हैं और परफ्यूम के अंदर ये नाइट्रोमस्क जो है ये कैंसर काज करती है, सुपारी कैंसर कोज करती है, और ऐसी 10 चीजें हैं। तो ये एक और एक के मिलाकर ये सारा का सारा मिश्रण आता है। नेक्स्ट, तो अब होता क्या है, आपके बीच में कुर्सियां आ रही हैं लेकिन माइंड नहीं करें। देखिए निकोटीन और सुपारी मिलती है तो एक और एक दो नहीं होती, एक और एक 11 के बराबर होती है। किस चीज में? कैंसर कारण करने में। और जब इनके साथ परफ्यूम मिलता है तो एक 111 होते हैं, न कि 3, न कि एक मल्टीप्लाई करके। तो इस वजह से, इस कारण से लगभग जो कैंसर मेल पॉपुलेशन में है वो 1/3 के अंदर मुंह और गले के कैंसर से विक्टिम है। नेक्स्ट, अब इसके लिए किया क्या है? 1994 में इंडियन एस्मा केयर सोसाइटी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई कि साहब इस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया जाए। नेक्स्ट, इसके अंदर ये एक WHO की ये मैनुअल है, इस मैनुअल के अंदर साफ लिखा है, इन रेस्पॉन्स टू डायरेक्टिव फ्रॉम जयपुर हाई कोर्ट, ए कमेटी ऑफ हेल्थ रिजॉर्ट्स ऑफ पान मसाला containing tobacco was constituted by DGHS
the committee examined data related to this new mixture about 2 decade old. देखिए 97 में ये सिर्फ 20 साल पुराना था, ज्यादा पुराना नहीं था। इस आविष्कार का श्रेय जाता है इंडिया को। यदि हम बात करें पिछली शताब्दी के 2 आविष्कारों की, अब अच्छे या बुरे, एक था परमाणु बम का आविष्कार और दूसरा था आविष्कार गुटके का। एक है वो है कितना वायलेंट किलर, तुरंत मानव सभ्यता का विनाशकारी, और दूसरा है साइलेंट किलर, जो कि धीरे धीरे क्षणे क्षणे तड़फा तड़फा कर मारता है। आगे क्या कहते हैं? द कमेटी रिपोर्ट वाज कंसीडर्ड बाय सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स इन नवंबर 1997 एंड रेकमेंडेड ए बैन ऑन च्यूइंग टोबैको इन द कंट्री। 97 के अंदर दैट कमेटी रेकमेंडेड ए कंप्लीट बैन, लेकिन फूड मिनिस्ट्री इन 1997 द रिपोर्ट ऑफ DGHS was considered by सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड एंड इट रेकमेंडेड बैन। लेकिन नेक्स्ट हेल्थ मिनिस्ट्री जो मीटिंग हुई, इसी रिपोर्ट का अंश है ये, विच सेज कि भाई ये तो इन पर बैन करना मुश्किल है, बहुत कठिन है, और इसको ठंडा बस्ता जिसको बोलते हैं उसके अंदर ये चली गई। नेक्स्ट, अब सवाल उठता है कि सिर्फ ये 30-40 साल के अंदर जो हुआ, इससे जो हेड एंड मुंह और गले के कैंसर में 1.1 लाख लोगों की मृत्यु होती है, और अब तक यदि हम 97 में भी एक्सपर्ट की कमेटी के ऊपर यदि बैन लग जाती तो कम से कम ये 1 लाख के हिसाब से 15 लाख लोग तो जिंदा होते, वो तो नहीं मरते। ये मैं इसको जी स्कैम नहीं कह रहा हूं, जी स्कैम में दूसरी बात के लिए कह रहा हूं। अपन बात कर रहे हैं कि साहब 2003 में बड़ा सख्त कानून बना, दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर इन इंडिया। द रीजन वाज कि जो PFA है, PFA ने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया कि तंबाकू नुकसानदायक है, इसमें किसी भी दूसरी चीज को नहीं मिला सकते। लेकिन 2003 के कानून में एक जगह ये दे दिया पान मसाला कंटेनिंग टोबैको, और सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में ये चीज आई कि ये तो भाई स्पेशल कानून था एंड ये बाद का कानून है, इसलिए हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो आप देखिए, अच्छी नियति से सरकार ने बहुत बढ़िया कानून बनाया, लेकिन लूप होल निकालकर इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाकर और इसका ये दुरुपयोग किया। सिर्फ उस कानून की एक लाइन जिसमें टोबैको, जिसमें कि पान मसाला कंटेनिंग टोबैको, एक इस लाइन का फायदा उठाकर ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितने है, शायद 10,000 करोड़ पर एनम, तो 8 साल में कितने हजार करोड़ हुए? 80,000 करोड़ का घोटाला एक तरह से इस एक लाइन जो 2003 के कानून की है उससे हुआ। 2006 में फूड मिनिस्ट्री ने फिर एक कानून बनाया और उसके अंदर ये कहा कि भाई ऐसा है कि इसको, ये अभी भी हार्मफुल है, these can't be mixed together। नेक्स्ट, तो भाइयों बहनों, जागने का वक्त है, जीवन बचाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त जा चुका, अब कुछ करने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।